and today is going to be first workshop that our forum is launching, and in future we are planning to launch such workshops. Particularly, these are very helpful for the undergrad students who have done their third year, fourth year, final year students. They are going to get a lot of help from these types of workshops. और क्योंकि सारे स्टूडेंट्स लोकल ही हैं, so I will be going bilingual, Urdu English mix. But if in next future, if we are going to have international students, so then our coaching medium will be throughout in English. सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और एएस ग्लोबल हेल्थ केयर एकेडमी के बारे में बताऊंगी. So, my name is Afifa Sagir, and I'm a graduate of University of Peshawar, 2014. And then I completed my PhD from Qaid-e-Azam University in year 2022. And in 2023, I cleared my exam CAPS, that is for Australia. And since 2023, I'm running this forum as CEO. ACE Global Healthcare Academy. It is basically, I launched it particularly for Pakistani pharmacists, that Pakistani pharmacists, if they want to move abroad with some special set of clinical skill and knowledge. So this is the path, this is the forum with which they can get connected and everything. But right now, we have students from different countries, like from India, from Nigeria, from Egypt, from UAE, from Saudi. So it's becoming a global platform nowadays. And this is our first workshop. And the purpose of this workshop is to give awareness to the students, particularly the fourth year and final year students in Pakistan, as well as the graduates who want to refresh their clinical knowledge. So if you want to work in a clinical setup, whether in Pakistan or internationally, so these are the concepts that are going to be very, very, very helpful for you, because we study pharmacology in our second year and in our third year. But what is the purpose of studying pharmacology? It is not clear to most of the students that I interact with. And when I was a student myself, I did not have this knowledge that why I am studying pharmacology, what is going to be the impact of pharmacology in my clinical practice. First thing, remember, we study this pharmacology, and this pharmacology is actually the overall whole practice of pharmacy, particularly in clinical settings. So if you want to excel as a clinical pharmacist in Pakistan or in abroad, so these are the basic skills that you should have. These are, you can say, these are the on hand skills every pharmacist, whether they want to practice in clinical pharmacy or not, these are the basic set of skills every pharmacist should have. प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट के साथ, जो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है, हम 5 साल की डिग्री करके निकल जाते हैं, हम लोगों के CGPS भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट एक्चुअली जो हमारी सब्जेक्ट की एप्लीकेशन है इन फील्ड, इन प्रैक्टिकल फील्ड, उसका नॉलेज नहीं होता हम लोगों को. और जब हमें अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होती, तो हम फेल करते हैं. हम किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह जाके, किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट में compete नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट की एप्लीकेशन नहीं पता होती, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो आज जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं, इस वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि जो आप चीजें पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आपकी जॉब में, या अगर आपने जैसे किसी भी कंट्री का एग्जाम पास करना है, इंटरनेशनल एग्जाम पास करना है, तो इंटरनेशनल क्राइटेरियाज को मीट करने के लिए आपके पास कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको आगे इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए काम आएंगे. लाइक अभी जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हूँ एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट, ठीक. यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं, एज ट्रेनी आए हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आए. ऑस्ट्रेलिया के फार्मासिस्ट भी ग्रेजुएटेड, फ्रेश ग्रेजुएटेड, वो मेरे साथ ट्रेनी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं. आउट ऑफ नोवेयर आपसे जो आपका सीनियर फार्मासिस्ट है, थ्रू आउट द डे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को उठा के उसका कोई भी क्लिनिकल एस्पेक्ट आपसे पूछता है, तो आपका क्लिनिकल नॉलेज, थेराप्यूटिक नॉलेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको एक हेड ऑन हेड आप उनके साथ मुकाबला कर सकें. मसला हमारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट का ये होता है कि वो चाहे किसी भी कंट्री का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रिलाय करते हैं किसके ऊपर, वो रिलाय करते हैं कि जी हमें कोई MCQs मिल जाए, कोई फाइल मिल जाए,
उसको बैठ के हम रट लें और रट के हम बस जी एग्जाम में जितने रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो स्कोर कर लें। लेकिन एक एग्जाम पास करना, ऑल्दो ये भी एक चैलेंज होता है, लेकिन एग्जाम पास करके आगे जाके अपनी एक प्रोफेशनल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें जगह बनाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे फार्मासिस्ट पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज में मूव करने के बाद भी अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में एक्सेल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं एक्सेल कर पा रहे? बिकॉज वो compete नहीं कर पा रहे, उनके पास बेसिक नॉलेज इतना अच्छा नहीं है जिसकी बेस पे वो क्या कर सके, compete कर सके। तो इस वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस दिलाना कि हाँ, हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, और अगर आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है फार्मेसी या आपने इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में जाके कोई एग्जाम क्लियर करके फार्मेसी को प्रैक्टिस करना है, तो ये बेसिक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, जिसकी वजह से आप आगे जाके एक अपना एक इम्पैक्टफुल लर्निंग और इम्पैक्टफुल लर्निंग के साथ कैरियर ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहली चीज जब आती है हमारे पास आती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक, अब डेफिनेशन में किसी भी इवन सेकेंड ईयर जो फार्माकोलॉजी जब उन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ना स्टार्ट की होती है उनसे भी पूछूंगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक है, लेकिन उस डेफिनेशन के जो हिडन मीनिंग्स हैं जो कि एक्चुअली हमें बताते हैं कि कितनी डीप डीप दो एस्पेक्ट्स हैं फार्माकोलॉजी के, आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। जो स्लाइड्स पे लिखा है, अब मैं बहुत ज्यादा स्लाइड्स के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं मैं उस पर एम्फेसाइज नहीं करती। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मैं इंटरेक्ट करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ उतना अच्छा बेहतर स्टूडेंट्स को समझ आता है। बाकी स्लाइड से बेहतर आपको बनी हुई शायद बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी, लेकिन जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, उतना बेहतर आप लोगों की लर्निंग होगी। अब जब हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी पढ़ना तो सबसे पहले हम जी पढ़ते हैं व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले इन सिंपल वर्ड्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि हमने लेट से एक टैबलेट खाई पैनाडोल की। पैनाडोल की टैबलेट जिस टाइम आपकी बॉडी के अंदर लॉन्च होती है उस टाइम से लेके जब तक वो टैबलेट उसके मेटाबोलाइट्स हमारे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होते, फ्रॉम द इंजेक्शन टिल द एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी जो भी कुछ कर रही है टैबलेट के साथ किसी भी डोजेज फॉर्म के साथ, वो सारे एस्पेक्ट, हमारी बॉडी उस ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, हमारी बॉडी उस ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारी बॉडी उस ड्रग को कैसे मेटाबोलाइज कर रही है, हमारी बॉडी उस ड्रग को कैसे एक्सक्रीट कर रही है, ये चारों कॉन्सेप्ट्स हमारे किसके अंदर आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ड्रग की काइनेटिक्स के ड्रग को कैसे मूव करवा रही है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिल द साइट ऑफ एक्सक्रीशन, और ड्रग को कौन मूव करवा रही है, हमारी बॉडी। सो फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट आवर बॉडी डज विद द ड्रग। Then second thing is what? Pharmacodynamics. So dynamics is what the drug is doing with our body. So how the drug is interacting with receptors, how the drug is interacting with our enzymes, how the drug is altering our normal physiological processes. So these studies are what? These are pharmacodynamics. Okay? अब हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स हमें तब समझ आएगी जब हमें फार्माकोकाइनेटिक्स की असल समझ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स इन सिंपल वर्ड दैट व्हाट आवर बॉडी इज डूइंग विद द ड्रग। ओके, सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब जब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज होता है, ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज सिर्फ हमें ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता। ठीक, जब आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, वहां पे भी आपको फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक, सबसे पहले तो ये कि फार्माकोकाइनेटिक्स के नॉलेज पे हम ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि जैसे हमारे पास हेपेरिन्स हैं, हमारे पास इंसुलिन है, ठीक है, ये वाली सारी चीजें क्या हैं, ये फार्माको काइनेटिकली इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि ये मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये प्रोटीन्स इन नेचर हैं, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। अब वो प्रोटीन इन नेचर हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता है बॉडी के बारे में कि कोई भी प्रोटीन इन नेचर चीज हमारे स्टमक के अंदर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, उसकी कोई कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें क्या पता है, ऑन द बेसिस ऑन द पैरामीटर्स ऑफ in drug and on the basis of the parameters of our physiology we decide the route of administration। ठीक, उसके बाद डोज।
अब हर ड्रग की डिफरेंट डोज होती है, ठीक है। एक ड्रग 1 मिलीग्राम पे इफेक्टिव है, लेट्स से एल्प्राजोलाम, एल्प इट इज इफेक्टिव एट 0.25 milligrams even. But at the same time, paracetamol it is effective at what? It is effective at 500 milligram. ठीक। अब ये क्या पैरामीटर्स हैं? ये पैरामीटर्स हैं हमारे पास ड्रग के और बॉडी के, ठीक। अब एल्प्राजोलाम ने जाके कहाँ पे एक्ट करना है? एल्प्राजोलाम ने ब्रेन में जाके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करना है। अब एल्प्राजोलाम के 0.25 मिलीग्राम्स भी जब रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पेनाडोल का 1 मिलीग्राम दे दें तो वो पेनाडोल का 1 मिलीग्राम इट इज नॉट सफिशिएंट टू इंटरेक्ट विद इट्स साइट ऑफ एक्शन। So on the basis of what? On the basis of pharmacokinetic knowledge, we decide the dose. Okay? Then frequency. अब फ्रीक्वेंसी कैसे? क्या हमें पता है कि एक ड्रग है, लेट्स से उसकी क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो 6 आवर्स बाद शुरू हो जाता है, ठीक। तो मींस उस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी है? 6 आवर्स है। अब उस ड्रग की हाफ लाइफ 6 आवर्स है तो ऑब्वियसली फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने किस तरह से सेट करनी है कि 3 times a day उसको हमने देना है, ताकि क्या हो कि जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो तो नेक्स्ट डोज चली जाए, ताकि क्या रहे? ताकि ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर मेंटेन रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक नॉलेज वी डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट टुडे वी आर ओनली एम्फसाइजिंग ऑन व्हाट? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। अब लेट्स से हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक। कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हमने क्या देनी है? एंटीबायोटिक देनी है। अब एंटीबायोटिक का सिर्फ काम किस चीज के साथ है कि जब तक वो जो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर है उतनी ड्यूरेशन के लिए हमने एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि एंटीबायोटिक का काम किसके साथ है? बैक्टीरिया के साथ है, ठीक। तो लेट से 3 दिन 5 दिन 7 दिन में आपका टीएलसी काउंट नीचे आ गया। टीएलसी काउंट इंडिकेटर है किसका? कि अब क्या है? पैथोजेंस की क्वांटिटी कम हो गई है बॉडी के अंदर, आपने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या है? आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी, दैट इज परमानेंटली स्टॉप्ड। अब उसके लिए हम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की इंसुलिन थेरेपी नहीं देते, आपको वो इंसुलिन थेरेपी थ्रू आउट लाइफ चलाती रहनी है। क्यों? क्योंकि आपका अपना इंटरनल ऑर्गन ने एक इंडोजेनस चीज जो है वो बनाना छोड़ दी है। तो अगेन इट डिपेंड्स, वी यूजिंग फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, देन वी यूज इंसुलिन पंप्स और इंसुलिन इंजेक्शंस एंड दीज थिंग्स, ठीक। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जब आपको पता होते हैं तो हम इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट ड्रग थेरेपी की तरफ जाते हैं। अब ये जो इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट ड्रग थेरेपी है, दिस इज द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी। दिस इज द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी, जहां पे हम इंटरनेशनली स्टैंड आउट करेंगे एज प्रेस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट। अब प्रिस्क्राइबिंग फार्मासिस्ट ओवरऑल वर्ड एक बहुत क्या कहते हैं, स्कोप वाली चीज है जो कि चल रही है। यूके में इम्प्लीमेंट हो गई है, अमेरिका में बिल्स पास हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ क्लिनिक स्पेशलाइज्ड ऐसे हैं जहां पे कुछ स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स करने के बाद फार्मासिस्ट इंडिविजुअलाइज्ड प्रिस्क्राइबिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर दैट इज गोइंग टू बी you can say practicing very soon, and it is already practicing in the UK, ठीक। अब जब हम बात करते हैं इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर की या इंडिविजुअलाइज पेशेंट ड्रग ट्रीटमेंट की, उसमें फार्मासिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। अब जैसे चीजें इवॉल्व कर रही हैं, डिफरेंट नई नई डिजीजेस आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीन्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की जीनोटाइप्स आ रही है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो जीनोटाइप रिलेट करती है फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ, तो हमारे जो लिवर के अंदर साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है, जो कि समझ लें कि 75% ड्रग्स जो हमारे पास हैं इन प्रैक्टिस, उनके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास जब अब विद डिस्कवरी पता चल रहा है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है उसके मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हैं। कुछ पेशेंट साइटोक्रोम P450 के लिए नॉर्मल मेटाबोलाइजर्स हैं, कुछ पेशेंट साइटोक्रोम P450 के लिए फास्ट मेटाबोलाइजर्स हैं, कुछ पेशेंट साइटोक्रोम P450 के लिए स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं। अब ये जो ऑलरेडी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर इंटरनेशनली बर्डन है, डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस पेशेंट की जीनोटाइप को देख के उसकी डोज एडजस्ट करें, पेशेंट को कोई ड्रग इंटरेक्शन से बचाएं।
तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे किसका रोल आ रहा है इंटरनेशनली? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, कि वो फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर स्पेशली एम्फेसिस करके इस तरह के इंटरवेंशंस करें। फिर उसके बाद आती है इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है क्या? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स। अब नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और बहुत कॉमनली यूज होती हैं। एंटीकोगुलेंट्स में वारफरिन हो गई, उसके बाद कार्डियक ड्रग्स में हमारे पास डिजिटेलिस हो गई, डिजॉक्सिन हो गई, उसके बाद हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में फिनेटोइन हो गई। नंबर ऑफ ड्रग्स जो कि क्या है? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं। अब उनकी मल्टीपल टाइम्स पे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब वही वाली बात कि अगर आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्पेशलाइजेशन है इन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो जब आप इंटरनेशनली कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे और आपके पास उसकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट अ वेरी गुड प्लेस in a well reputed hospital or a research center or a clinical setup, जहां पे आपकी इन स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज, ये जो वर्कशॉप है, इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसका ये मकसद है कि इन कॉन्सेप्ट के साथ आपको आपके एक फ्यूचर का विजन मिले कि आप फ्यूचर में जाके इन सेट ऑफ स्किल्स के साथ कहाँ कहाँ किस किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जहां जहां पे भी फार्मासिस्ट की इंटरवेंशन होती है इन मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, इन मैनेजमेंट ऑफ द फार्माकोथेरेपी, वहां पे क्या है? वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ये आते हैं कि फार्मासिस्ट एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दे वर्क इन मैक्सिमाइजिंग द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड रिड्यूसिंग द इवेंट्स, एडवर्स ड्रग इवेंट्स। ओके, और सबसे लास्ट चीज जो है कि अब फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी आ रहे हैं। डायग्नोस्टिक टूल में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रही है और ये वाली फील्ड भी सब स्पेशलिटी में आती है और आप इसमें भी स्पेशलाइज करके आगे एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारी ड्रग्स जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन होता है उनको इम्प्लाई करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं, और पेशेंट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर कि वो उस ड्रग को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम अंडरलाइंग डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, हम अंडरलाइंग डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। So this is a futuristic approach of the pharmacokinetics and dynamics. ठीक, उसके बाद हम आते हैं ड्रग डिस्कवरी के ऊपर। सो ड्रग डिस्कवरी के अंदर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कोविड से पहले ड्रग डिस्कवरी का ज्यादा एम्फोसिस जो था एंटी कैंसर और इन मेडिकेशंस के ऊपर था। कोविड के बाद जो हेल्थ केयर सिस्टम है ओवरऑल द वर्ल्ड, इट इज चेंज्ड। कोविड ने सारे हेल्थ केयर सिस्टम के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। और कोविड का एक फायदा ये भी हुआ है, ओवरऑल तो कोविड के नुकसानात ही हैं, लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ कहाँ लैग कर रहा है। तो इस तरह के पैंडेमिक्स और इस तरह की चीजों में पूरे ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम का जो क्या कहते हैं फ्लो चार्ट है वो रीडिजाइन हुआ, और दुनिया के सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस दोबारा से पता चली कि अकेले डॉक्टर्स और नर्सेज जो है ना हेल्थ का जो बर्डन है वो नहीं बेयर कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसकी जरूरत है, और पोस्ट कोविड ही सबसे पहले यूके ने फार्मासिस्ट को इंडिविजुअल प्रेस्क्राइबिंग की परमिशन दी है। ये चीजें विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years बहुत सारे जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इम्प्लाई हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम नहीं करना चाहते, आप एज अ रिसर्च फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं, तो रिसर्च फार्मासिस्ट काम करने के लिए भी आपको जरूरत नहीं है कि आप MS PhD करके ही रिसर्च फार्मासिस्ट बन सकते हैं। On the basis of your PharmD degree, if you have good knowledge of the pharmacokinetics and dynamics, you can participate in research as well. और रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस चीज का नॉलेज होना होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज होना होता है। अब ये जो पाई चार्ट है ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट फेज में ड्रग्स ज्यादातर क्यों फेल करती हैं, क्योंकि 39% टाइम्स पे उनके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स सही से डिवाइस नहीं हुए होते, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की एक्चुअल नॉलेज नहीं होती, और जब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की एक्चुअल नॉलेज नहीं होती तो वो फेज 2, 3 या 4 ट्रायल्स में फेल कर जाती हैं। ठीक, और वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए अब जो इंटरनेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो रिसर्च बेस्ड
थेरेपी के ऊपर बिलीव करती हैं, अब उन्होंने 50% ज्यादा फार्मासिस्ट को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट के पास इस चीज का एम्पल नॉलेज है। अब आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स का एम्पल नॉलेज होगा तो आप सिर्फ क्लिनिकल साइड पे ही नहीं, आप रिसर्च साइड पे भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ आते हैं। ओके, आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? आर यू गाइस गेटिंग अलोंग? किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन? ओके, गुड। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स वही वाली चीज जो कि क्या है, जो साइंस है, जो कि रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग को डिस्क्राइब करती है विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सबसे पहले ड्रग कहाँ आती है? हम ओरल ड्रग की बात करते हैं। ओरली हमने ड्रग ली तो वो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेगी? हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगी। अब स्टमक में लॉन्च होने के साथ उसका क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा? उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जीआई ट्रैक उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है? जीआई ट्रैक्स की जो लेयर्स हैं उससे पास करने के बाद वो कहाँ पे पहुंचेगी? ब्लड पे पहुंचेगी। ब्लड उस ड्रग को कैसे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी साइट ऑफ एक्शन तक? डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग ब्लड के थ्रू लिवर तक पहुंचेगी। लिवर उसको कौन से मैकेनिज्म से मेटाबोलाइज करता है, और मेटाबोलाइज करने के बाद लिवर उसको कैसे बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ये सारे का सारा पाथवे हम किस में डिस्कस करते हैं? हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी इसी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से रिलेट करती हैं कि ड्रग अपने डिस्ट्रीब्यूट अपनी साइट ऑफ एक्शन के अलावा बाकी बॉडी की जिस जिस जगह पे जाके इंटरेक्ट कर रही है और वहां जाने के बाद वो जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है, इधर वो टॉक्सिक है या नहीं है, टॉक्सिक है तो किस हद तक है, ये वाली सारी चीजें भी हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के बेस पे फिर वही वाली बात कि हम डिसाइड करते हैं ऑनसेट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। Okay, so in simple words, what bodies does with the drug is called as what? Pharmacokinetics. Now, importance of pharmacokinetic studies, so वही वाली बात जो हम पहले बहुत देर से डिस्कस करते भी आ रहे हैं। अब हम अल्टीमेटली अगर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो अल्टीमेटली सफर किसने करना है? पेशेंट ने सफर करना है। ठीक, अब लेट से हमारे पास एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स की है, और उस ड्रग का क्या है? उस ड्रग की बॉडी के ऊपर टॉक्सिसिटी भी है। अब हमें ये फार्माकोकाइनेटिक नॉलेज नहीं है कि अगर एक ड्रग की हाफ लाइफ 24 आवर्स है तो उसको हम वंस डेली डोजिंग पे देंगे। अगर हम उस ड्रग को पेशेंट को दे दें बीडी पे, हम ना दें, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजी, एक ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स है और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे उसको बीडी प्रेस्क्राइब किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं कि ये तो इस ड्रग की डोज ही ओडी है, डॉक्टर ने इसको बीडी में क्यों प्रेस्क्राइब किया है, और आप वही बीडी के मुताबिक डोज निकाल के पेशेंट को दे दें, पेशेंट ने ले ली डोज, तो 24 आवर्स में उसकी एक डोज मेटाबोलाइज होती है। अब पेशेंट 24 आवर्स के अंदर 2 डोजेस ले रहा है। अब 2 डोजेस लेने का क्या मतलब है? कि ज्यादा ड्रग बॉडी के अंदर जा रही है। अब ज्यादा ड्रग जाने की वजह से ड्रग बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो सकती है, ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली किसने सफर किया? अल्टीमेटली पेशेंट ने सफर किया। ठीक, उसके बाद एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ है 8 आवर्स और वो जानी चाहिए टीआईडी में 3 टाइम्स अ डे। डॉक्टर ने उसको ओडी में प्रेस्क्राइब कर दिया, आपने एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटरवेंशन नहीं किया, आपने उसको ओडी ही दे दिया। अब वो ड्रग बेशक बेनिफिशियल है लेकिन उसका क्या है? उसका डोजिंग इंटरवल सही नहीं है, तो अब वो ड्रग अपना थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक, उससे भी क्या होगा? अल्टीमेटली पेशेंट सफर करेगा। ठीक, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फार्माकोजेनेटिक्स की बात बता रही हूँ कि बहुत सारी ड्रग्स क्यों हैं डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स में वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती हैं। अब मैं इसमें आपको कोडीन की एग्जांपल देती हूँ। कोडीन बेसिकली क्या है? कोडीन एक प्रो ड्रग है। ठीक, कोडीन जब बॉडी में जाती है तो वो पहले लिवर उसको अपटेक करता है, और लिवर का जो एंजाइम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम की आगे सब टाइप्स हैं। साइटोक्रोम P450 का सब टाइप एंजाइम है CYP2D6। ठीक, CYP2D6 एंजाइम कोडीन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मॉर्फिन के अंदर। और मॉर्फिन क्या प्रोड्यूस करती है? एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब विद द डिस्कवरी इन फार्माकोजेनेटिक्स ये डिस्कवर हुआ रिसेंटली कि कोडीन के आगे क्या है? डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं।
कुछ पेशेंट्स जो हैं वो CYP2D6 के फास्ट मेटाबोलाइजर्स हैं और कुछ पेशेंट जो हैं वो CYP2D6 के स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं। अब अगर सेम डोज हम कोडीन की फास्ट मेटाबोलाइजर्स को भी देंगे और स्लो मेटाबोलाइजर्स को भी देंगे तो दोनों में प्रॉब्लम्स होंगी। अब अंडरस्टैंड करते हैं फास्ट मेटाबोलाइजर्स को पहले। फास्ट मेटाबोलाइजर्स का क्या मतलब है कि लेट्स से हम उस पेशेंट को 100 मिलीग्राम कोडीन के देंगे तो फास्ट मेटाबोलाइजर उस 100 मिलीग्राम को फौरन कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 100 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन के अंदर। अब वो 100 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एनाल्जेसिया तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ जो मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी है, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, वो सारे इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्लो मेटाबोलाइजर को 100 मिलीग्राम कोडीन देंगे तो वो क्या करेगा, वो स्लोली स्लोली कोई 100 मिलीग्राम ऑफ कोडीन को 20-30 मिलीग्राम ऑफ कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करेगा। अब उस पेशेंट में क्या होगा, स्लो मेटाबोलाइजर में एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा प्रॉपरली। ठीक। यहाँ पे क्या फिर इंटरवेंशन आती है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट दैट यू शुड नो द जीनोटाइप ऑफ द पेशेंट। इफ द पेशेंट इज फास्ट मेटाबोलाइजर सो हम क्या देंगे, पेशेंट को कम डोज देंगे कोडीन की ताकि क्या हो, एनाल्जेसिया तो प्रोड्यूस हो मॉर्फिन से लेकिन मॉर्फिन वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम हो। और अगर पेशेंट स्लो मेटाबोलाइजर है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, थोड़ी हायर डोज देंगे कोडीन की ताकि क्या हो, इतनी सफिशिएंट अमाउंट मॉर्फिन की प्रोड्यूस हो जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो ये वाली सारी चीजें हमें कैसे पता होंगी, जब हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स का एक्सटेंसिव नॉलेज होगा। ओके, क्लियर? ओके, अब सबसे पहले स्टेप के ऊपर आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है कि मोमेंट है ड्रग की फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिल द साइट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर 70 to 75 % ड्रग के लिए हमारे पास जो साइट ऑफ मेजरमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है। चाहे आप ओरली ड्रग दो, चाहे आप ट्रांसडर्मली दो, चाहे आप सब कट दो, सब ब्लड की ड्रग की कंसेंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मेजर करते हैं। तो प्लाज्मा को हम यूजुअली साइट ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकती है, ओरल है, ट्रांसडर्मल है, सब कट है, IM है, सारी, लेकिन जो साइट ऑफ मेजरमेंट है वो यूजुअली कौन सी होती है, वो ब्लड ही होती है। अब एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, थेरापेटिक इफेक्ट के लिए। वही वाली एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा कोट करूंगी इंसुलिन की, कि इंसुलिन को अगर हम ओरली दे दे, जितनी अच्छी फॉर्मुलेशन बना के दे दे, लेकिन जब इंसुलिन स्टमक में डिग्रेड हो जाएगी, डिग्रेड होने के बाद जब उसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ओरल इंसुलिन का कोई फायदा नहीं। इसी तरह मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आजकल डर्मेटोलॉजिकली जितना एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ये उसके सीरम, कोलेजन के सीरम्स। अब कोलेजन क्या है, कोलेजन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, कोलेजन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। अब इतने सारे सीरम्स डिफरेंट नामों से, डिफरेंट ब्रांड से आ रहे हैं जी, एंटी एजिंग कोलेजन, एंटी एजिंग कोलेजन। अब कोलेजन की ये प्रॉपर्टी है कि टॉपिकली वो हमारे एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, बैरियर, स्किन बैरियर वो क्रॉस ही नहीं कर सकता। तो आप टॉपिकली जितना भी कोलेजन अपने मुंह पे लगा लें, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का नॉलेज ही नहीं है, और कितने ही फार्मासिस्ट हैं जो अपने स्किन केयर ब्रांड्स लॉन्च करके कोलेजन के सीरम्स बेच रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज ऑफ नो यूज। ओरली भी अगर कोलेजन लेना है तो कोलेजन का सिर्फ एक या दो सब फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि एब्जॉर्ब होती हैं, बाकी सारी कॉम्प्लेक्सेशंस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो ये वाले सारे नॉलेजेस एज बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास होने चाहिए, बट द डायलेमा इज कि हम 5 साल की डिग्री करके निकल आते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि कौन सी ड्रग टॉपिकली एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ओरली होती है और कौन सी सबकट होती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो जब एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी तभी उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा, जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक। और फिर जब ड्रग
एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसके बाद वो पहुंच जाएगी प्लाज्मा के अंदर, और जब वो प्लाज्मा के अंदर पहुंच जाती है तो फिर उसका क्या नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू हो जाता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन का स्टेप जो है वो सिर्फ एक रूट में एग्जाम्प्ट होता है, दैट इज आईवी रूट, क्योंकि आईवी में क्या है, ड्रग डायरेक्टली हम ब्लड पूल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक। बाकी हर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर है, सिर्फ हमारे पास आईवी रूट में एब्जॉर्प्शन का पैरामीटर नहीं है, ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट जो फिगर है इसमें यही जस्ट डिपिक्ट किया हुआ है कि ड्रग जो है आईवी से डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, और ओरल में ये है कि डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करने के बाद वो पहुंचती है किसके अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अब जब हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले वही वाली चीज जो मैं पहले से डिस्कस करती आ रही हूँ कि ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, ड्रग की आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, फॉर्मुलेशन, वही वाली बात हैपरिन है। हैपरिन हम जितनी भी ओरली अच्छी बना के दे दें लेकिन वो क्या होगी, स्टमक में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं उसको ओरल रूट से देने का। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है जो कि ज्यादातर ये इसको कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक। अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में हम क्या डिसाइड करते हैं, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ज्यादातर चीज इंप्लाई होती है इमरजेंसी में। अब इमरजेंसी में अगर आपके पास कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आया है, तो अब आप अनकॉन्शियस पेशेंट को बेशक कितना ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट क्यों ना हो, आप उसको ओरली कोई ड्रग नहीं दे सकते, उसके लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ओरल चॉइस ही नहीं है। इसी तरह से जो पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि ओवर द काउंटर पीपीआई पेशेंट ऐसे यूज करते हैं क्रॉनिकली, जैसे खाना आपका दिन में 2 टाइम 3 टाइम जरूरी है, इसी तरह पीपीआईज, एंटासिड्स और अपनी मर्जी की चीजें पेशेंट्स यूज करते रहते हैं। अब पीपीआईज और एंटासिड प्रिपरेशंस या ये जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, रेनिटिडीन वगैरह, ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक पीएच को इतना ज्यादा चेंज कर लेते हैं, और इतनी सारी ड्रग्स हैं जो कि एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती हैं। अब वो पेशेंट जो है, लेट्स से एक कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, उसको स्ट्रोक हुआ है, उसको बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं। अब इन पेशेंट्स के लिए हमने एंटी प्लेटलेट देनी ही देनी होती है। अब एस्पिरिन है, एस्पिरिन उनके लिए एंटी प्लेटलेट डोज पे चल रही होती है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, पेशेंट्स ओटीसी में ही ना ओमेप्राजोल भी ले रहे होते हैं। अब ओमेप्राजोल के साथ क्या होता है, ओमेप्राजोल लेने के बाद आपकी 10 से 12 घंटे तक जो जीआई पीएच होती है वो क्या होती है, वो न्यूट्रल की तरफ रहती है। एस्पिरिन एब्जॉर्ब होती है एसिडिक पीएच में। अब पेशेंट का स्टमक एसिडिटी की तरफ जा ही नहीं रहा ओमेप्राजोल के यूज की वजह से, तो एस्पिरिन पेशेंट की एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। जब पेशेंट की एस्पिरिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं आ रहा। एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं आ रहा तो वो पेशेंट दोबारा किसी भी टाइम एमआई या स्ट्रोक का क्या बन सकता है, विक्टिम बन सकता है, ठीक। तो ये पेशेंट की एजुकेशन है कि आपने जब ये ड्रग लेनी है तो इसके साथ ओटीसी में ये ड्रग आपने नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ओटीसी में ये ड्रग लेंगे तो आपकी इस ड्रग का काम खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा इस तरह का कोई भी चीज हो सकती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, 1 डॉक्टर विद एवरी 1700 पेशेंट्स, 1700 पेशेंट्स ऑन 1 डॉक्टर। अब ह्यूमनली एक डॉक्टर के लिए 1700 पेशेंट देखना पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो देख रहा है तो वो 1700 पेशेंट को ये काउंसलिंग दे सकता है, नहीं दे सकता। बट एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें ये चीज पता होनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि आगे फार्मेसिस्ट के ऊपर भी क्या है, हर फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट ज्यादातर तो या है ही नहीं, और अगर है भी तो वो क्या कर रहा है, वो एक कैशियर की ड्यूटी कर रहा है, वो एक क्लर्क की ड्यूटी कर रहा है। तो दीज थिंग्स चेंज विद यू। चेंज सबसे पहले आपने खुद से बनाना है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं वहां पे आप खुद थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करें, लेकिन आप इंटरेक्ट कब करेंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो अपने नॉलेज को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और अपने नॉलेज की बेसिस पे किसी की भी लाइफ आप इम्प्रूव करेंगे तो वो एक ऑनगोइंग चीज है, दैट इज अ चेन ऑफ रिएक्शन, वो कोई नहीं रोक सकता, ठीक। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, चेंज 1 या 2 दिन या कुछ सालों के अंदर नहीं आता। यहीं से एग्जाम्पल ले लें कि हमारा फार्म डी का सिलेबस 2011 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद अब 2025 में रिवाइज हुआ है, ठीक। अब जो 2025 में रिवाइज हुआ है, 2025 के जो ग्रेजुएट्स होंगे ऑनवर्ड्स उनके लिए बहुत फायदा होगा। लेकिन अब
ये जो 11 से 25 के दरमियान का लैग है, ये आपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके ही कवर करना है, इसके अलावा देयर इज नो वे आउट। ठीक, उसके बाद डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनसे ड्रग्स जो हैं एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इससे पिछले वाली सारी बातें क्लियर हो गई? किसी चीज में कोई एम्बिग्युइटी? ओके, गुड। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास मैकेनिज्म आता है वो क्या है हमारे पास? पैसिव डिफ्यूजन का। पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड डिफ्यूजन। ठीक, 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल का स्टमक में पड़ा है, 0 मिलीग्राम ब्लड के अंदर है, तो क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से स्टमक से पैरासिटामोल मूव करेगी किधर? इसकी तरफ, ब्लड की तरफ। सो सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। उसके बाद आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, लेकिन वो ड्रग्स क्या हैं, उनकी कुछ नेचर ऐसी है कि वो इजीली जो है ना इस जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो फिर उनके लिए हमें सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर करना चाहती हूँ। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास दो तरह की ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स ईदर दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर और दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। ठीक है, अब जो हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं ना, जो लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं, उन ड्रग्स की बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है, उनके अंदर क्या है? फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं? लिपिड्स अपने अंदर से लिपिड्स को आराम से गुजरने दे देते हैं। ठीक है, तो जो ड्रग जितनी लिपोफिलिक होगी ना, जब भी हम आगे जाके जब भी कभी डिस्कस करें इस बात को, तो ये बात आपने याद रखनी, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अपने पास बोल्ड वर्ड्स में लिख के रख लें कि द मोर द लिपोफिलिक द ड्रग, द हायर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। तो वो हर बॉडी कंपार्टमेंट में गुजरेगी। ठीक है, सबसे मेन बैरियर हमारी बॉडी के अंदर, सबसे जो कॉम्पैक्ट किस्म का बैरियर है, दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर आपने किसी ड्रग को क्रॉस करवाना है ना, सबसे इजी चीज है, उसको लिपोफिलिक कर दो। उस ड्रग जितनी लिपोफिलिक है, उतनी भाग भाग के वो ब्लड ब्रेन बैरियर से भी गुजरेगी, सारे बैरियर से। और दूसरी चीज ये भी अपने पास बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं कि जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है ना, तो मेटाबोलाइज होने का, ड्रग को मेटाबोलाइज करने का मकसद ही एक है लिवर का, कि लिपोफिलिक मॉइटीज को हाइड्रोफिलिक मॉइटीज में कन्वर्ट करें। तो जो ड्रग जितनी ज्यादा हाइड्रोफिलिक होगी ना, उतना उसको किडनीज अपने अंदर से एक्सक्रीट करेंगी। तो हाइड्रोफिलिक मॉइटीज, they tend to do what? They tend to go for excretion. And lipophilic moieties, they tend to go for what? Tend to go for distribution. ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट। ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी वही आपके पास आता है, क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन क्या है? ड्रग की लिपोफिलिसिटी थोड़ी सी कम है, तो कोई कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में टू द ब्लड। फिर उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या है? इसमें भी कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। थोड़ी सी अमाउंट होगी ड्रग की, जो कि किस साइड पे होगी? जीआई साइड पे होगी। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है? कैरियर प्रोटीन्स आती हैं, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स उसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हुए एनर्जी भी यूज करती हैं, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेडियंट मौजूद नहीं होता, तो कैरियर प्रोटीन्स को एनर्जी, एटीपीस को यूटिलाइज करते हुए उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करवाना होता है। और फिर जब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की, तो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, तो वो क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन एक कैविटी अपने अंदर बनाती है, एक स्पेस क्रिएट करती है, उसको इनगल्फ करती है और दूसरी साइड पे रिलीज कर देती है। तो ये क्या मैकेनिज्म होता है? ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का होता है। अब जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट जो एक और चीज हमारी आती है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के दौरान, कि आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। पर्टिकुलरली 3 पॉपुलेशंस फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है: पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, ये 3 बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सेट ऑफ पॉपुलेशंस हैं, लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आपका आगे जाके इंटरनेशनल भी या फिर पाकिस्तान में भी बहुत स्कोप है।
if you know the pediatric population pharmacokinetics, if you know the geriatric population pharmacokinetics, if you know the gynae ops population pharmacokinetics, फिर जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उसके बाद डायबिटीज है, सो एंड सो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी इस वर्कशॉप में हम सिर्फ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। अब पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की एब्जॉर्प्शन और अडल्ट पॉपुलेशन की एब्जॉर्प्शन में कुछ चेंज होता है, क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में क्या होता है, अभी सारे सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट होते हैं, स्टमक छोटा सा है, स्टमक के अभी एंजाइम्स उस तरह से काम नहीं कर रहे, ठीक है, बाइल एसिड्स अभी प्रॉपरली उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहे, जीआई फ्लोरा भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। फिर पीड्स का क्या है, उनका स्टमक एम्प्टिंग टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बड़ों को 4-6 घंटों बाद भूख लगती है, बच्चों को हर घंटे डेढ़ बाद भूख लगती है, ठीक है, तो वो उनका स्टमक एम्प्टिंग टाइम है। फिर उसके बाद स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या लेते हैं, वो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। फॉर्मूला मिल्क के अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये क्या हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जो किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर किसी भी ड्रग की डोज, उसका डोजिंग इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज डिसाइड करनी है, तो हमने क्या जहन में रखना है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के जो डायनेमिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द एडल्ट पॉपुलेशन। उसके बाद सेकेंड चीज की तरफ आते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग ब्लड में पहुंच गई, अब ब्लड ने क्या करना है, उस ड्रग को लेकर जाना है उसकी साइट ऑफ एक्शन की तरफ, ठीक। अब जब ड्रग, लेट्स से हम डिस्कस करते हैं एल्प्राजोलाम को, एल्प्राजोलाम पेशेंट ने खा ली, एल्प्राजोलाम ने किधर जाकर काम करना है, सीएनएस के अंदर काम करना है। अब एल्प्राजोलाम जितनी ज्यादा लिपोफिलिक होगी उतनी ज्यादा वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी। तो वहां क्या है कि जो साइट ऑफ एक्शन है, जो एग्जैक्ट साइट है, उधर वो मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है, वो चीज हमने देखनी है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स की हम बात करते हैं, अब अगर हम कहते हैं कि मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, पेनिसिलिन उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, ठीक। लेकिन पेनिसिलिन का एक प्रॉब्लम ये है कि पेनिसिलिन जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो हम पेनिसिलिन कैसे भी कर ले, पेनिसिलिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी। जब पेनिसिलिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगी तो वो जो कॉजेटिव एजेंट है मेनिंजाइटिस का, उसको ट्रीटिंग कर सकती। तो अब क्या है कि हम ड्रग भी देखते हैं कि हम ड्रग किस जगह को टारगेट करने के लिए दे रहे हैं। तो उस ड्रग की अगर उस जगह तक डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो ड्रग इफेक्टिव है। अगर वो ड्रग इन विट्रो तो हर जगह बहुत इफेक्टिव है, लेकिन जब वो ड्रग अगर अपनी जगह, अपनी टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच रही, तो इन वीवो वो क्या है, यूजलेस है, ठीक। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है कि आपको ड्रग की नेचर और उसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो पता होना चाहिए। अब जैसे हेपरिन है हमारे पास, हेपरिन की कोई कोई लिपोफिलिसिटी नहीं है, हेपरिन प्योरली हाइड्रोफिलिक ड्रग है। लेकिन हेपरिन का क्या है, हेपरिन का साइट ऑफ एक्शन क्या है, ब्लड। हेपरिन ने कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, हेपरिन ने ब्लड में ही रह के एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। तो फिर हेपरिन को हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हेपरिन को ब्लड तक कैसे पहुंचाएं, उसको क्रॉस कैसे करवाएं। लेकिन अगर एक ड्रग है जिसने ब्रेन में जाना है और वो हाइड्रोफिलिक है, तो या तो हमें उसके साथ सर्टेन इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी कि उसकी क्या हो, उसके लिपोफिलिसिटी इंप्रूव हो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपने मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जिस जो जगह है, जिस ड्रग ने जाके काम करना है, वहां की एनवायरनमेंट कैसा है, उस एनवायरनमेंट में आया वो ड्रग अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच पा रही है या नहीं, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, ड्रग प्लाज्मा के अंदर पहुंच गई। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स के साथ प्लाज्मा के अंदर क्या है, डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की उनके अंदर एफिनिटी होती है। अब एक ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ड्रग किस फॉर्म में है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक नहीं जाती, वो प्लाज्मा में ही घूमती रहती है। इन विच फॉर्म, इन बाउंड फॉर्म। only the free form of the drug that is not bound to plasma protein it will be available for distribution, ठीक है। तो अगर हम जैसे पढ़ते हैं जी के एनसेड्स है,
ठीक है। एनसेड्स जो हैं इनकी क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। लेट्स से हम कहते हैं जी के आइबोप्रोफिन की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 90% है। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी ड्रग जो ब्लड में पहुंची है उसमें से 90% ड्रग किसके साथ बाउंड है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, और 10% ड्रग जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, और वो 10% ड्रग ने जाना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करना है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चीज कि हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट न्यूट्रिशनल स्टेटसेस होते हैं पेशेंट्स के। अब अगर पेशेंट है वो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट का क्या होगा कि उसके अंदर ओवरऑल प्रोटीन्स कम होंगी। जब उसके अंदर ओवरऑल प्रोटीन्स कम होंगी तो उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कम होंगी। तो जब उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगी तो वहां पे क्या चांसेस होंगे कि जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं वो फ्री फॉर्म में फिर रही होंगी, और फ्री फॉर्म में फिर रही होंगी तो इसका क्या मतलब है कि वो टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फिनेटोइन है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है फिनेटोइन का। अब अगर फिनेटोइन हम एक हेल्दी इंडिविजुअल में लेट से हम 100 मिलीग्राम देते हैं, ठीक है, और उस 100 मिलीग्राम में से फिनेटोइन की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 90% है, ठीक, तो उसके मुताबिक फिनेटोइन की हमने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग डोज सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है। एट द सेम टाइम हमारे पास एक माल न्यूट्रिशन बच्चा आता है, ठीक है। अब उस एज सेम है दूसरे बच्चे के लिए, लेकिन क्या न्यूट्रिशन स्टेटस डिफरेंट है। अब उस माल न्यूट्रिशन बच्चे को हम अगर 100 मिलीग्राम देंगे फिनेटोइन के, आगे फिनेटोइन के बाइंड करने के लिए प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स कम है, तो इंस्टेड ऑफ 90% 60% फिनेटोइन जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी, लेकिन 40% फिनेटोइन फ्री होगी। 40% फिनेटोइन फ्री है, इसका मतलब है क्या कि फिनेटोइन अकोमुलेट कर सकती है बॉडी के अंदर, और चूंकि फिनेटोइन क्या है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमेशा आपने इस तरह की ड्रग्स जिनकी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है और पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्टेड है, तो को रिलेशन करके आपने डोज एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक। उसके बाद आता है लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, वही वाली बात, जितनी लिपोफिलिक होगी उतनी ज्यादा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन आपने तीसरी चीज ये भी देखनी है कि लिपोफिलिक ड्रग्स हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लिपोफिलिक कंपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे एडिपोज टिश्यूज हैं। तो लिपोफिलिक ड्रग्स में हमेशा ये होता है, दो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ ये भी होता है कि वो हमारे पास एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाके अकोमुलेट हो सकती हैं, टेम्परेरी स्टोरेजेस भी बना सकती हैं, ठीक। और फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इट्स प्लान्ड फॉर द थर्ड डे ऑफ द वर्कशॉप, उसमें बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक, क्लियर। Can we give lipophilic as IV? Yes, lipophilic drugs can be given as IV. Yes, Aisha? Okay, okay. So, like phenytoin, it is lipophilic drug. So, phenytoin we give IV. Loading dose of phenytoin is given. Okay. Barbiturates like thiopentol, it is given for induction of anesthesia. The anesthetic agents, the IV anesthetic agent, propofol. Remember, propofol, it is highly lipophilic agent, and if we give it as IV. So, lipophilic drugs, they are given IV, they are given oral, they can be given through any route. Okay. Okay. Then coming towards pediatric distribution. So again, just like the absorption, pediatric parameters are different. Body composition is different. Extracellular fluid composition is different. Concentration of adipose tissue, skeletal muscle is different. Plasma proteins are different. So again, we have to know what? We have to know the exact distribution parameters of the pediatric population, and then we have to go and adjust the doses. Okay. Then coming towards the metabolism. और मेटाबॉलिज्म के हवाले से ना आप लोगों को मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लिख के बताती हूँ कि अगर हमें मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म का अच्छा नॉलेज है ना, तो या वी आर एट टॉप ऑफ आवर गेम। चाहे आप किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म एक इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कि लाइक अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, इंटरनेशनल एग्जाम्स की, तो इंटरनेशनल एग्जाम्स में अब जिस तरह से इंटरनेशनल एग्जाम्स के ना पैटर्न्स रेवोल्यूशनाइज हो रहे हैं,
डे बाय डे हार्मोनाइज भी हो रहे हैं और रेवोल्यूशनाइज भी हो रहे हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं एग्जाम्स, इंटरनेशनल एग्जाम्स। और वो क्या करते हैं, थेराप्यूटिक्स को अब उन्होंने 60-70% वेटेज दी है। कोई भी किसी भी कंट्री का आप एग्जाम उठा के देख लो, थेराप्यूटिक्स में अगर 60-70% वेटेज है ना, तो उसमें से 50% वेटेज जो है ना वो किसके अंदर है, वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर है। या तो वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, और या फिर वो क्या है, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर? तो इसलिए जो है ना, आपका जो मेटाबॉलिज्म वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो आपको मेटाबॉलिज्म में जितनी भी कोई डिफिकल्टीज है ना, आप क्लियर करो, आप लाजमी क्लियर करो, ताकि आपको पता हो कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आप मेटाबॉलिज्म को सिर्फ अभी नहीं, मेटाबॉलिज्म आप जहां जहां देखोगे, ठीक है, वहां वहां आपको काम आएगा। आप अपनी क्लिनिकल की तरफ देखो, आप अपनी ये इवन जो पेशेंट काउंसलिंग है, कम्युनिटी की तरफ देखो, किसी भी जगह देखो तो ड्रग मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, 1 minute, I think so one student has lost the connection and she's requesting. Okay. Okay, now she has joined. Okay. सो मेटाबॉलिज्म की तरफ जब हम आते हैं, तो मेटाबॉलिज्म में एक चीज आपने याद रखनी है कि चाहे ड्रग्स हो या कोई भी एक्सोजीनियस चीज जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे टॉक्सिन्स हैं, कोई भी फॉरेन बॉडीज हैं, वो हमारी बॉडीज के अंदर क्या चीज होती है, वो कंसिडर होती है समथिंग फॉरेन, समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो बाहर की कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, वो क्या करती है, वो कोशिश करती है कि वो उसको डिटॉक्सिफाई करके निकाल दे। अब डिटॉक्सिफिकेशन का जो मेन ठेका है वो किसके पास है, वो लिवर के पास है। ठीक, अब जो भी ड्रग बॉडी के अंदर आती है, ज्यादातर 70-75% ड्रग्स को जो है ना मेटाबलाइज करने का ठेका किसने लिया हुआ है, लिवर ने लिया हुआ है। लेकिन लिवर के अलावा कुछ ड्रग्स लंग्स में मेटाबलाइज होती हैं, कुछ ब्लड में भी हो जाती हैं, और डिफरेंट कुछ ड्रग्स किडनी में भी मेटाबलाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उन ड्रग्स को फिर क्या करते हैं, लेकिन मेन मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर हमारा एम्फेसिस होता है, मेन मेटाबॉलिज्म लिवर के ऊपर होता है। अब क्या हुआ, ड्रग पहुंची अपनी साइट ऑफ एक्शन तक, उसने अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया, एंजाइम के साथ इंटरेक्ट किया, और उसके बाद ड्रग किधर आ गई, ड्रग पहुंच गई उसके बाद ब्लड के थ्रू लिवर में। अब लिवर के पास जब ड्रग आती है, तो लिवर का क्या एक ही मकसद है कि जो लिपोफिलिक मोइटी है उसको डिफरेंट रिएक्शंस करने के बाद उस लिपोफिलिक मोइटी को किस में कन्वर्ट करे, हाइड्रोफिलिक मोइटी में कन्वर्ट करे, और किडनीज की तरफ भेजे ताकि किडनीज उसको एक्सक्रीट करें। दूसरा लिवर का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो प्रो ड्रग्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एक्टिव ड्रग्स के अंदर। अब जब हम बात करते हैं एक्चुअल मेटाबॉलिज्म की, ड्रग्स की, तो वहां पे हमारा मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में होता है, फेज 1 रिएक्शंस और फेज 2 रिएक्शंस। अब ये जो शुरू से मैं साइटोक्रोम P450 साइटोक्रोम P450 की बात कर रही हूँ, तो फेज 1 रिएक्शंस में हमारा लिवर जो एंजाइम सिस्टम्स को यूज करता है उसको क्या कहते हैं हम, साइटोक्रोम P450। ठीक है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है हेपेटोसाइट्स के। ठीक, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट इनके आगे सब टाइप्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला जो रिएक्शन है वो यूज करके क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू क्या करता है, ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। अब जब हम साइटोक्रोम P450 की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ड्रग इंटरेक्शंस हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस जो सबसे ज्यादा थेराप्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट हैं, और जो आप समझ लो कि एक सेंट्रल पॉइंट हैं, जितने भी इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से आते हैं, वो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन से आते हैं। तो ड्रग इंटरेक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि साइटोक्रोम P450 है क्या, एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब है, एंजाइम इनहिबिशन का क्या मतलब है, और ड्रग इंटरेक्शंस के ऊपर टेक फोर्थ ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज
totally on the drug interactions and what kind of drug interactions we have and how to manage the drug interactions. ठीक, तो अब आपने फिल वक्त के लिए इतनी सिंपल सी बात समझनी है कि जो भी ड्रग्स साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स के फंक्शंस को तेज कर देंगी, उसके रिडॉक्स रिएक्शंस को तेज कर देंगी, तो वो क्या होंगी, एंजाइम इंड्यूसर्स होंगी और वो बाकी ड्रग्स के क्या करेंगी, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देंगी। और जो भी ड्रग्स जो साइटोक्रोम P450 के जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको उसकी पेस को स्लो कर देंगी, तो वो क्या होंगी, साइटोक्रोम P450 की इनहिबिटर्स होंगी और वो क्या करेंगी, वो बाकी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देंगी। अब इसके ओवरऑल इफेक्ट्स क्या आएंगे, हम इनको मैनेज कैसे करेंगे और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास इसमें, इसको हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। अब फेज 1 रिएक्शंस में हमारे पास हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज मेटाबॉलिज्म, इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक, उसके बाद जो फेज 1 रिएक्शन से हमारे पास जो भी मोइटीज बनती हैं वो फिर जाती हैं लिवर के फेज 2 रिएक्शंस के अंदर। अब फेज 2 रिएक्शन का क्या पर्पस होता है कि जो भी प्रोडक्ट फेज 1 रिएक्शन ने फीड किया है फेज 2 रिएक्शन को, तो उसके साथ वो क्या ऐड करते हैं, पोलर ग्रुप। ठीक, अब पोलर ग्रुप ऐड करने का क्या मकसद है, पोलर ग्रुप जब उस मेटाबोलाइट के साथ अटैच हुआ है तो पोलैरिटी इंक्रीज हुई है, पोलैरिटी इंक्रीज हुई है तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई है। हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई है तो मतलब उस चीज की क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन फेवरेबल हो जाएगी, एक चीज। दूसरी ये चीज कि जब हम कोई पोलर ग्रुप ऐड करते हैं तो उसके साथ वो जो मेटाबोलाइट होता है उसका वेट भी बढ़ जाता है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, रीएब्जॉर्प्शन के चांसेस ही नहीं है। तो लिवर मेक श्योर करता है कि जो भी ड्रग उससे मेटाबोलाइज होके निकले उसकी कोई रीएब्जॉर्प्शन के चांसेस ना हो, उसके साथ कॉन्जुगेशन करके पोलर ग्रुप की उसकी हाइड्रोफिलिसिटी भी इंक्रीज कर दी, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ा दिया, तो अब उस ड्रग के कोई चांसेस ही नहीं है उस मेटाबोलाइट के कि वो रास्ते में कहीं किडनीज तक पहुंचने से पहले किसी और जगह से रीएब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, तो हमारे पास जो फेज 2 रिएक्शंस है उनको हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कहते हैं, और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में हमारे पास ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन है, सल्फेट कॉन्जुगेशन है, और सबसे कॉमन हमारे पास कौन सी होती है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है। क्लियर, मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद आते हैं हम एलिमिनेशन के ऊपर। अब जो है ना ड्रग पहुंच गई किडनी तक, किडनी ने उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन सब मैकेनिज्म से गुजार के यूरिन में एक्सक्रीट कर लिया। कुछ ड्रग्स को जो लिवर जो है ना डायरेक्टली किसमें, बाइल में एक्सक्रीट करता है, और बाइल जो है वो फिर फीसिस के थ्रू उन ड्रग्स को एक्सक्रीट कर देती है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, ज्यादातर इनहेल्ड टाइप ऑफ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे साथ क्या होती हैं, वो डायरेक्ट जो एक्सचेंज ऑफ एयर है उसके थ्रू एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम पीडियाट्रिक एलिमिनेशन के ऊपर। अब पीडियाट्रिक एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ना बच्चों के अंदर जो एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, पर्टिकुलरली द जीएफआर, वो फुली डेवलप ही नहीं होता अंटिल द एज ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल तक हमने ड्रग की डोज को इसी तरह एडजस्ट करके देना है कि हमें पता है कि वहां पे जीएफआर फुली डेवलप नहीं है। तो अगर एक अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर एक ड्रग 6 घंटे में एक्सक्रीट हो रही है, तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर वो ड्रग 10 से 12 घंटे में एक्सक्रीट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमने डोजिंग इंटरवल को बढ़ाना है। फिर जब हम बिल्कुल न्यूनेट्स की तरफ आते हैं तो न्यूनेट्स में एक तो जीएफआर फुली डेवलप नहीं है, ब्लड फ्लो अभी उनका फुली डेवलप नहीं हुआ होता, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, मजीद चांसेस होते हैं कि ड्रग क्या हो, बहुत स्लोली एलिमिनेट हो। तो अगर हम लेट्स से एक ड्रग 6 घंटे में अडल्ट से एक्सक्रीट हो रही है, पीड में 10, पीड पॉपुलेशन में 10 घंटे में एक्सक्रीट हो रही है, तो न्यूनेटल पॉपुलेशन में हो सकता है वो 14 या 15 घंटे में एक्सक्रीट हो। तो हमने अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डोजिंग इंटरवल एडजस्ट करने होते हैं। अब जैसे हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, पेनिसिलिन्स हैं, ये प्योरली एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज हैं। अब अगर ये ड्रग्स हम पीडियाट्रिक्स या न्यूनेटल पॉपुलेशन को देंगे तो डोज तो डिक्रीज करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हमने डोजिंग इंटरवल भी बढ़ाना है ताकि हम मेक श्योर करें कि जब किडनीज के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि पीडियाट्रिक एलिमिनेटरी मैकेनिज्म्स 3 साल तक फुली डेवलप नहीं हुए होते। और
3 साल से पहले अगर आप पीडियाट्रिक एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स को ओवरबर्डन करेंगे तो बहुत सारी नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के चांसेस हो सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये सारी क्या है, समराइज हैं। और अल्टीमेटली अगर आप यहाँ एंड पे देखें तो लिपोफिलिक ड्रग को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो पहले हम फेज 1 में डिफरेंट मेटाबोलाइट्स आएंगे, फिर उस सारी चीजें, और अल्टीमेटली क्या होगा, ड्रग किसकी तरफ जाएगी, हाइड्रोफिलिक मॉइटी की तरफ जाएगी, और फिर किस में कन्वर्ट होगी, फिर ये कन्वर्ट होगी उसके अंदर एलिमिनेशन की तरफ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की, ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे प्रिया। ओके, तो ये अपर पोर्शन जो है, द येलो पोर्शन वी हैव डिस्कस। तो डोज ड्रग की दी, ड्रग कंसेंट्रेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। अब जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ड्रग पहुंच गई साइट ऑफ एक्शन पे, अब साइट ऑफ एक्शन के साथ जो है ड्रग क्या करेगी, लेट से किसी भी, जैसे हम अल्प्राजोलाम की बात कर रहे थे, ब्रेन में पहुंच गई, ब्रेन में पहुंच के वो किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी एफिकेसी शो करेगी, और बाकी जगहों पे जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से उसके क्या होंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये हम किस में कवर करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं जो कि हमें डेली टाइम पे काम आते हैं, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यहाँ पे तो ये पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक, अब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन सिंपल वर्ड्स के वो टाइम और वो कंसंट्रेशन जिसमें लेट से आपने जैसे पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम टीआईडी 3 दफा दिन में आपने लेनी है, फिर पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम। अब क्या होगा कि पैरासिटामोल जब आप 3 दफा लेते हो या 4 दफा लेते हो, 5 दफा लेते हो, आप पैरासिटामोल का एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर। लेट से कंसंट्रेशन पैरासिटामोल का डेवलप हो गया 250 माइक्रोग्राम पर एमएल। ठीक, सपोजिटली अब वो जो 250 माइक्रोग्राम पर एमएल है, ये क्या है, ये अचीव हो गया प्लाज्मा के अंदर। अब उसके बाद जितनी भी पैरासिटामोल बॉडी के अंदर आएगी उतनी ही तकरीबन एक्सक्रीट होगी। तो ये जो कंसंट्रेशन अचीव हो गई ना पैरासिटामोल की प्लाज्मा के अंदर, ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन वो डिजायरेबल कंसंट्रेशन है जिस डिजायरेबल कंसंट्रेशन के ऊपर ड्रग क्या करती है, अपने ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है। ठीक, अब ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए इसीलिए हम डोजिंग इन फ्रीक्वेंसी और डोजिंग इंटरवल्स बताते हैं ना, कि ये 4 दफा लेनी है दिन में, ये 2 दफा लेनी है, ये 3 दफा लेनी है, ये इतने दिन तक लेनी है। ठीक, ताकि हम क्या करें कि ड्रग की स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो प्लाज्मा के अंदर, और स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होने के बाद क्या होते हैं, ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज आना शुरू होते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि, और स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन का एक जर्नल प्रिंसिपल है कि ये अचीव होती है, डायरेक्टली कोरिलेट करती है किसके साथ, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग के साथ। तो ज्यादातर ड्रग्स की जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद अचीव हो जाती है। लेट से पैरासिटामोल की हाफ लाइफ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स है। ठीक है, तो 6 5 30 आवर्स के बाद जो है, अगर आप हर 6 घंटे बाद पैरासिटामोल खा रहे हैं तो 30 आवर्स के बाद आपके ब्लड के अंदर जो है ना पैरासिटामोल की एक स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी। अब उस स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन का क्या फायदा होगा कि आपके अंदर जो पैरासिटामोल के थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज हैं, एनाल्जीज या एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स, वो मेंटेन रहेंगे। ठीक है, पैरासिटामोल क्या देता रहेगा, अपना ऑप्टिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट देता रहेगा। तो अब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन किसके साथ डायरेक्टली कोरिलेट करती है, डायरेक्टली कोरिलेट करती है हाफ लाइफ के साथ। अब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली कोरिलेट करती है लोडिंग डोज के साथ। अब क्या होता है कि लोडिंग डोज क्या है, अब बाजों का लेट से एक पेशेंट आया है और उसको क्या है, उसको सवेयर किस्म का एरिथमिया है। ठीक है, अब उसके एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर कहता है कि डिजॉक्सिन देनी है। ठीक है, अब हमने फॉरेन एरिथमिया को एक्यूट कंडीशन में मैनेज करना है।
अब डिजॉक्सिन के साथ हमने उसको मैनेज करना है, लेकिन डिजॉक्सिन का जब कोई भी ड्रग है वो अपना ऑप्टिमल थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स कब प्रोड्यूस करेगी, जब उसकी स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगी। अब डिजॉक्सिन है, फिनेटोइन है, इस तरह की बहुत सारी ड्रग्स है, अमायोडोरॉन है, इन ड्रग्स की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ 80 आवर्स है। तो इसका क्या मतलब है कि 80 इंटू 5, आपने कितनी 400 घंटे इंतजार करना है कि डिजॉक्सिन का थेराप्यूटिक लेवल स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर डेवलप हो और डिजॉक्सिन ऑप्टिमली जो है वो एरिथमिया को ट्रीट करना शुरू करे, और इमरजेंसी में पेशेंट के पास 800 क्या शायद 8 आवर्स भी ना हो। इन सिचुएशंस में जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है और जिन ड्रग्स की हमें एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशंस में जरूरत होती है, तो उन ड्रग्स की हम क्या करते हैं, हम लोडिंग डोज देते हैं। हायर डोज, एकदम बॉडी को लोड कर रहे हैं हायर डोज के साथ। एकदम से जब बॉडी हायर डोज के साथ लोड होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जल्दी अचीव हो जाती है। और जब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जल्दी अचीव हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद जब हम पेशेंट इमरजेंसी में स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट की मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करते हैं और फिर मेंटेनेंस डोज को उसके क्रॉनिक यूज के लिए एडजस्ट करते हैं। तो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड व्हाई द ड्रग्स दे नीड लोडिंग डोज, क्लियर हो गया? ओके। अब लोडिंग डोज कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि डिजायर्ड कंसंट्रेशन जो हमें उस टाइम पे प्लाज्मा में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय द बायो अवेलेबिलिटी। सो इससे हम यूज करते हैं क्या, लोडिंग डोज कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी चीज ये कि लेट्स से डिजॉक्सिन जो है वो रीनली एक्सक्रीटेड ड्रग है। अब पेशेंट है, उसको लोडिंग डोज चाहिए डिजॉक्सिन की और पेशेंट का रीनल फेलियर भी है, ठीक है? तो हम क्या उसकी लोडिंग डोज को एडजस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि लोडिंग डोज, कोई भी प्रॉब्लम हो, रीनल डिसफंक्शन है, हेपेटिक डिसफंक्शन है, हमने लोडिंग डोज सेम रखनी है। डोज एडजस्टमेंट्स हम हमेशा किसके अंदर करते हैं, मेंटेनेंस डोज के अंदर करते हैं, क्योंकि लोडिंग डोज का एक ही पर्पस है कि वो एक थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन बना ले ब्लड के अंदर। उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज है वो अकॉर्डिंग टू द हेपेटिक और रीनल प्रोफाइल हम सेट करते हैं, ताकि क्या हो, ना मेटाबॉलिज्म पे ओवरबर्डन आए और ना ही एलिमिनेशन पे ओवरबर्डन आए। तो एग्जाम में, इंटरनेशनल एग्जाम्स में ये चीज बहुत कॉमनली पूछते हैं कि ये पेशेंट है, इसका ये प्रोफाइल है और इसकी ये किडनी में ये मसला है और इसको इस वाली ड्रग की लोडिंग डोज चाहिए, तो इस वाली लोडिंग डोज की हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे इन रीनल डिसफंक्शन पेशेंट। सो लोडिंग डोज की हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, whether the patient has hepatic dysfunction or the patient has renal dysfunction. The only adjustment the patient needs is to be done with the maintenance dose. Clear? Okay. Now on the next slide वही वाली चीज एक्सप्लेन की हुई है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ के, विदाउट लोडिंग डोज जो है हमारे पास स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन देर से अचीव होती है और विद लोडिंग डोज जो है हमारे पास स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जल्दी अचीव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, लीनियर जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं, नॉन लीनियर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और मैकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। ये थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, और आज क्योंकि फर्स्ट हमारा स्टार्ट है तो हम कल ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स प्लस फार्माकोडायनामिक्स, ये दो चीजें हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हैं? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। और आई होप यू आर फाइंडिंग द सेशन एंड वर्कशॉप हेल्पफुल, और inshallah by the end of this workshop all of your basic concepts, the basic knowledge you will be needing as a clinical pharmacist, whether you wish to practice in Pakistan or abroad, they will be clear. And in future, obviously we will be handling more of these, and we will also be available, me, Rizwan, Priya, all of these members, they are working with AS Global Healthcare Academy, and they are my core team members, and again I'm very thankful to them. And if I'm not available anytime, you can just contact Priya or Rizwan. They will also help you and they will also guide you, and they are also your seniors, so again you can contact them as well. But again, I'm trying to be available as much as possible for the students. Okay,
So I'll see you all tomorrow, inshallah. And till tomorrow, please take care of yourselves and remember me in your prayers. Fi amanillah.